Sri Gurubhyo Namah. Hi students, I welcome all of you to the new class of Ashtanga and today's topic is Aushadakala, that is the last session of Doshopakramani Adhyaya, that is Ashtanga Sutrasthana 13th chapter. Okay, so let's get started with the topic. So Aushadakala is time of administration of drugs or medicines. The proper time, the accurate time or the ideal time in which you should give medicine to a patient. Okay, so उसके बारे में बात करेंगे आगे से. So look at the slok. The slok is important and Aushadakala is very important like Aharakala. Aharakala, where did you study Aharakala? We studied Aharakala, that is proper time or ideal time of administration of meals. We studied it Matrashiti Adhyaya, chapter number 8 of Ashtanga Sutrasthana. है ना? So that is Aharakala. That is also important. In the same way, there is something called Aushadakala in Doshopakramani Adhyaya and this is also very important topic. Look into the slok. Yunjayat anannam annadho madhye ande kabalandare grase grase muhu sa annam samudkam nishicha aushadam. So there are 10 different time for administration of medicines. So what are the 10 different times of administration of medicine? First one is anannam. Anannam is when there is no food in the stomach, that is empty stomach में देने वाला औषध, that is anannam. Okay, खाली पेट में देने वाला. अन्नादो, at the commencement of the food intake, भोजन के पहले जो भी हम लोग मेडिसिन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनन्नम. अनन्नम को दूसरा एक और नाम है प्राक्भक्तम. सॉरी, अन्नादो का दूसरा नाम जो है दैट इज प्राक्भक्तम, भोजन की पहले. ओके, अनन्नम का दूसरा पर्यायवाचन है अभक्तम. अभक्तम. ओके, अन्नादो या प्राक्भक्त. नेक्स्ट इज मध्यान्नम. अन्न के मध्य, at the middle of food intake, that is madhyanam. Next, andha, end of meal. At the end of the meal if we give medicine, that is andha, भोजन के अंत में देने वाला मेडिसिन को. ओके, नेक्स्ट इन बिटवीन मोसल्स. इन बिटवीन मोसल्स और कबलांतरम. मोसल मतलब ईच बाइट ऑफ फूड. इन बिटवीन ईच bite of food if we give medicine, that is called as kabbalantaram. Okay, next is grase with each bite of food. kabbalantara क्या था? in between each bite of food, है ना. and grase मतलब in with each bite of food, that is grase. ग्रासों के मध्य और साथ देते हैं. इसमें औषध कैसे देते हैं? इसमें औषध को ग्रासों के मध्य और ग्रासों के साथ देते हैं, दैट इज ग्रासे. मुहुर्मुहु, फ्रीक्वेंटली, बार बार मेडिसिन देना, उसको क्या बोलते हैं? मुहुर्मुहु. सा अन्नम को समभक्त भी बोलते हैं. सा अन्नम मतलब भोजन के साथ मिलाकर देने वाले औषध को सा अन्नम बोलते हैं, मिक्स्ड विथ फूड. नेक्स्ट, सामुद्गम, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फूड, दैट इज सामुद्गम. थोड़े भोजन के साथ देता है पूर्व में और थोड़े भोजन के पश्चात में किया जाता है, दैट इज सामुद्गम. बोथ बिफोर फूड एंड आफ्टर फूड if we give medicine, that is called as samudgam. And last one is nishi, सोते समय देने वाला, at night before going to sleep, bedtime, that is nishi. okay, nishicha औषधम. so यही है 10 different time of administration of food. औषध सेवन की 10 कालों का वर्णन यही है. ठीक है. So next, the slok is important, in which all kinds of diseases we give which all kind of time of administration क्या क्या है. कफोद्रेगे गदे अनन्नम बलिनो रोगरोगिणो अन्नादो विगुणे अपाने सामाने मध्ये इष्यते व्याने अन्ते प्रातरश्यस्य
सायमशस्य तु उत्तरे ग्रासे ग्रासान्धयो प्राणे प्रदुष्टे मादरिष्वनि मुहुर्मुहुर्विषचर्दि हित्मा तृच्छ्वासकाशिषु योज्यं सभोज्यं वैषज्यं भोज्यैश्चिथैररोचके कंप आक्षेपक हित्मासु सामुत्कं लघुभोजिनां ऊर्ध्वजतृविकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते. This slok is also important. If possible, please by heart the slok. So रोगानुसार औषध काल उसके बारे में बात कर रहे हो. देखो, कफ की वृद्धि, रोग और रोगी के बलवान होने पर अनन्नम दैट इज खाली पेट औषध देना चाहिए. सो अनन्ना औषध कब देना? इन विच कंडीशन ऑफ डिसीजेस वी शुड गिव अनन्नम? खाली पेट में, एम्प्टी स्टमक में कब दवा देना है? कफ की वृद्धि के समय, रोग और रोगी की बलवान होने पर खाली पेट में औषध देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, अपान वायु की वैगुण्य में, अपान वायु के कुपित होने पर अन्नादो काल में औषध देना चाहिए. अन्नादो क्या था? प्राग्बद्धम, भोजन के पहले औषध देना चाहिए इन केस ऑफ अपान वायु वैगुण्य. क्लियर. नेक्स्ट, समान वायु के कुपित होने पर अन्न के मध्य में देना चाहिए औषध को. इन विच कंडीशन? अगर समान वायु को वैगुण्य है, समान वायु कुपित है, देन वी हैव टू गिव मेडिसिन एट द मिडल ऑफ फूड, अन्न के मध्य में. ठीक है. व्यान वायु को कुपित होने पर प्रातः भोजन के अंत में और उदान वायु के कुपित होने पर सायंकाल भोजन के बाद में औषध देना चाहिए. दैट इज अंत में. व्यान वायु कुपित होने पर प्रातः सुबह का फूड की बाद औषध देना चाहिए, और उदान वायु अगर वैगुण्य है देर सायंकाल भोजन की बाद औषध देना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, प्राणवायु के कुपित होने पर ग्रास में, ग्रास क्या होता है? ईच बाइट ऑफ फूड. ओके, दैट इज ग्रास. ओके. प्राणवायु के कुपित होने पर ग्रास में मिलाकर या ग्रासों के मध्य में औषध देते हैं. अगर हमारा प्राणवायु में वैगुण्य है, देन वी हैव टू गिव फूड, वी हैव टू गिव मेडिसिन आइदर एट व्हाट टू से एट ईच बाइट ऑफ फूड, या तो मिडिल दो, ईच व्हाट टू से एक बाइट के बाद औषध, फिर एक बाइट ऑफ फूड, ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट, विष, चर्दी, हिक्का, त्रिट, श्वास और कास रोग में बार बार औषध देना चाहिए. बार बार मतलब मुहुर औषध देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, अरुचि में अनेक प्रकार की भोजन के साथ मिलाकर औषध देना चाहिए. अरुचि, when there is loss of taste, इस कंडीशन में भोजन के साथ मिलाकर औषध देना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? सा अन्नम. ठीक है. नेक्स्ट, कंप, आक्षेपक और हिक्का में थोड़े भोजन के साथ पूर्व और पश्चात में औषध देना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामुद्गम. ठीक है. और ऊर्ध्व जत्रगत रोगों में सोते समय औषध देना चाहिए. ऊर्ध्व जत्रगत रोग में जस्ट व्हाट टू से जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, निशी मतलब रात, है ना, उस समय औषध देना चाहिए. सो these are the 10 different time of administration of medicine. Okay, what were they? Yunjayat anannam annado, युञ्जयात् अनन्नम अन्नादो मध्ये अंडे कबलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहु सा अन्नम सामुद्गम निशीचा औषधम. These are the 10 different times for administration of food. So युञ्जयात् अनन्नम अभक्त, it is also called as अभक्त औषधम. अभक्त औषध यह है जिसमें प्रातःकाल मतलब रात्रि का भोजन पचन होने की बात, दैट इज औषध दिया जाता है इन अभक्त कंडीशन. प्राग्भक्तम क्या था? प्राग्भक्तम मतलब वह है जिसमें भोजन के पूर्व औषध का सेवन करते हैं. मध्यभक्तम आधा भोजन करने के बाद औषध खाना और उसके बाद शेष भोजन करने मध्यभक्त है. अधोभक्त क्या था?
अधोभक्त भोजन करने के बाद तुरंत औषध का सेवन अधोभक्त है। अधोभक्त और अंतर्भक्त भी हैं। इसमें पूर्वाह्न काल में सेवन किए गए भोजन की जीर्ण हो जाने पर मध्याह्न में औषध का सेवन करना और इसके जीर्ण हो जाने पर पुनः अपराह्न में भोजन करना चाहिए, यही अंतर्भक्त है। समभक्त अन्न को पकाते समय ही इसमें औषध मिला देता है या अन्न को पकाने के बाद औषध को मिलाकर इससे इस अन्न को सेवन करना को समभक्त बोलते हैं। ठीक है। सामुद्गम, इसमें औषध का सेवन भोजन के प्रारंभ और अंत में किया जाता है, दैट इज सामुद्गम। मुहुर्मुहुर, इसमें औषध को प्रतिक्षण खाने और ना खाने पर भी दिया जाता है, दैट इज मुहुर्मुहुर औषध काल। उसके बाद नेक्स्ट वन वाज सग्रासम। सग्रासम क्या है? उसमें औषध को भोजन के ग्रास के साथ देता है। और ग्रासांतरम क्या था? इसमें औषध के प्रत्येक ग्रास के बीच बीच में देते हैं। ओके। यह सग्रास और ग्रासांतर प्राणवायु के विकारों में प्रयुक्त की जाती है। और सबसे लास्ट क्या था? निशी, एट बेड टाइम। दैट वाज दीज आर द 10 डिफरेंट औषध काला अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। ठीक है। So this is the end of this chapter. So study this. Aushadha Kala is very important. Study this log if possible. So this is the end. I'll be coming with a new chapter in the next session. Until then, take care all of you.